Hello, I am Seema Khan from South Al-Ummah TV 24. In India, Muslims are subjected to भारत में आपने कई ऑपरेशंस देखे, जैसे ऑपरेशन बुलडोजर, ऑपरेशन लंगड़ा, लेकिन अब इसी कड़ी में आया है ऑपरेशन पिस्टल, यानी अब आप जेब में बंदूक रख सकेंगे। सही सुना आपने, मामला असम का है, जहां सीएम हिमंता ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है। एक तरफ भारत के कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल के बाद हिमंता बिस्वा ने मोर्चा संभाल लिया है। असम में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ पर हिमंता तगड़ी स्ट्राइक का पूरा खाका तैयार करके बैठे हैं और अपने राज्य के लोगों को हथियारों से लैस करने का फैसला लिया है। असम की स्थिति पर नई रिपोर्ट, लोगों में बढ़ती आशंकाएं और राजनीतिक माहौल को लेकर गंभीर सवाल। रिपोर्ट माइनस सीमा खान की फाइल से विशेष रिपोर्ट। असम से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और विश्लेषकों में चिंता बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हाल के महीनों में प्रशासनिक गतिविधियों और राजनीतिक बयानबाजी ने कुछ समुदायों में असुरक्षा की भावना को तेज किया है। कुछ स्थानीय सूत्रों का कहना है कि प्रदेश का वातावरण गुजरात और मणिपुर जैसी स्थितियों की याद दिलाता है, जिसकी वजह से लोग संभावित तनावों को लेकर सतर्क हैं। इन स्रोतों का दावा है कि कुछ गतिविधियां बिना खुलकर बताए चल रही हैं, जिनके बारे में मुख्यधारा मीडिया में चर्चा कम दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य सरकार की नीतियों और बयानबाजी को लेकर पहले भी कई विवाद उठे हैं, जिसके चलते सामाजिक माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया है। हालांकि अब तक किसी भी सरकारी अधिकारी या संस्था की ओर से किसी हिंसक योजना या सीधे खतरे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुनने और सभी समुदायों में भरोसा बहाल करने के लिए पारदर्शिता और संवाद की जरूरत है, ताकि असम में शांति और स्थिरता बनी रहे। आखिर में, अगर हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो देश की आवाज़ टीवी 24 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले न्यूज़ का हकदार बनिए। Report on Assam's situation, growing apprehensions among people and serious questions on the political environment. Report from Seema Khan's Files, Special Report. A significant report has emerged from Assam, raising concerns among local residents and analysts. According to the report, administrative activities and political rhetoric in the state in recent months have intensified a sense of insecurity among certain communities. Some local sources suggest that the atmosphere in the state is reminiscent of situations like Gujarat and Manipur, due to which people are vigilant about potential tensions. These sources claim that certain activities are going on secretly, GUP, which receive little discussion in the mainstream media. Political analysts believe that several controversies have previously arisen regarding the state government's policies and rhetoric, making the social atmosphere more sensitive. However, so far there has been no official confirmation from any government official or institution regarding any violent plan or direct threat. The report also states that transparency and dialogue are necessary to seriously listen to people's concerns and restore confidence across all communities, so that peace and stability can be maintained in Assam. Closing message. If you like this news, please be sure to like, subscribe and share Desh Ki Awaaz TV 24 and press the bell icon to be the first to receive the news. বাংলা সংস্করণ। শিরোনাম, আসামের পরিস্থিতি নিয়ে নতুন প্রতিবেদন। জনগণের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ, রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। প্রতিবেদন মাইনাস সীমা খানের ফাইল থেকে বিশেষ রিপোর্ট। আসাম থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সামনে এসেছে, যা স্থানীয় মানুষ এবং বিশ্লেষকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে রাজ্যের সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিরাপত্তা বোধকে তীব্র করেছে। কিছু স্থানীয় সূত্র জানাচ্ছে যে রাজ্যের পরিস্থিতি গুজরাট এবং মণিপুর এর মতো পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যার কারণে মানুষজন সম্ভাব্য উত্তেজনা নিয়ে সতর্ক রয়েছেন। এই সূত্রগুলির দাবি, কিছু কার্যকলাপ গোপনে খোলসা না করে চলছে, যা মূলধারার গণমাধ্যমে খুব কমই আলোচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্য সরকারের নীতি ও বাগাড়ম্বর নিয়ে আগেও বেশ কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে, যার ফলস্বরূপ সামাজিক পরিবেশ আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো হিংসাত্মক পরিকল্পনা বা সরাসরি হুমকির কোনো সরকারি নিশ্চয়তা মেলেনি। প্রতিবেদনটি আরও বলছে যে জনগণের উদ্বেগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে শোনা এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য স্বচ্ছতা এবং আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে আসামের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।
দিন জুলুম অত্যাচার হবে ততদিন জিহাদ হবে। এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং মাওলানা মেহমুদ মাদানী কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করুন। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पे इंशाअल्लाह। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं, वो SIR भी चलाया हुआ है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आजारी की परवाह करते हैं। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। लिहाजा मुगल दौर के वाकयात को इस्लाम से जोड़कर पेश करना न सिर्फ तारीखी एतबार से गलत है, बल्कि इससे बहुत सी गलत फहमियां जन्म लेती हैं। गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेजों की नहीं है। ऐसा न हो कि गोरे अंग्रेजों से तो बुजुर्गों ने आजादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज औलाद के गुलाम हो जाएं। ध्यान रखिएगा, हम तो जमीयत उलमा में इसलिए नहीं आए हैं कि छोड़ के भाग जाएंगे। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे। तो भागने की तैयारी कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है। न जाएंगे न आप लोगों में से किसी को जाने देंगे। कोई ये सोचता हो कि कोई चला जाएगा ओहदा न होने की वजह से, ये कैसे होगा? जिनके पास ओहदा है वो अपने तरबियत याफ्ता लोगों को अपनी हयात मुबारक में अपने हाथ से उस जगह पे बिठाएंगे और उसकी सरपरस्ती करेंगे, हाथ पकड़ के आगे चलाएंगे। उन्होंने उनका सूरज नहीं डूबता था, उनसे टक्कर ली थी, जेलों को आबाद किया, फांसी के फंदों को चूमा है। तो क्या उस तसलसल को छोड़ देंगे? इस बात से डर जाएंगे कि पाबंदी लग जाएगी हमारी जमात के ऊपर? डरोगे? नहीं डरेंगे। कुछ भी हो जाए हालात, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह।